first edition of the Nahar Jeeto Bookathon, presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we shall explore the insightful book, Ringside, Up Close and Personal on India and Beyond by Honorable Dr. Vijay Dardaji. The book serves as a follow-up to Honorable Dr. Dardaji's previous work, Straight Thoughts, and provides readers with a wide range of topics covering a variety of topics such as science, environment, economy, security, social development, sports, arts, culture, and foreign policy. The book provides an intellectual journey into national and international affairs. Ringside also provides readers with insight into contemporary political, social, cultural, and important events and developments. With a comprehensive exploration of important topics, the book aims to engage readers and provide a deeper understanding of the current political and social landscape. Our esteemed speaker for this session is Honorable Dr. Vijay Jawaharlal Dardaji, who is a distinguished journalist, visionary politician, successful entrepreneur, and an accomplished author with many books to his credit. His writings are regularly featured in several national dailies. A versatile artist, poet, and songwriter, Honorable Dr. Dardaji holds a diploma in journalism and printing technology from Mumbai University. He has completed a humanities program on the crucial subject, Religion, Conflict and Peace from world-renowned Harvard University. As a chairman of Lokmat Media Group, he focuses on addressing issues that affect the common man most. A three-time Rajya Sabha MP, Honorable Dr. Dardaji has championed causes such as social justice, agrarian crisis, health infrastructure, education, women empowerment, power shortage, etc. His philanthropic efforts include disaster relief, support to distressed farmers, and industrial development. A committed social worker, Honorable Dr. Dardaji always extends a helping hand to the poor and downtrodden. Our esteemed moderator for this session is Mr. Sanjay K. Jain ji, who is the Managing Director of TT Limited, a company listed on NSE and BSE. He holds an MBA from IIM Ahmedabad, where he was a double gold medalist and is also an FCS and FCMA. He is the author of Pinch of Salt in Recipe Called Life. He serves as the chairman of the ICC National Textiles Committee and has previously chaired CITI, NITRA, TSC, NITMA, and JBN. He is the vice president of FOMA and WBHA and a director, executive committee member of CII, Textiles, ICC, CITI, IAAI, TexProsil, MCCI, JITO, BJS, and TPF. He is also a mentor at Santa Clara University in the USA, Business Clinic, and JBN. His accolades include the ET Business Leader Award, Udyog Ratna Award, Asia Pacific Entrepreneur Award, and the World HR Congress CEO Award. He has been featured in prominent media outlets such as India Today, The Economic Times, The Times of India, Business India, Marwar, CNBC, Zee Business, and ET Now. Without further ado, I'd like to hand over the session to our esteemed moderator. सबको मेरा नमस्कार. This is Sanjay Jain, जीतो अपेक्स डायरेक्टर, और ये मेरे लिए बड़ी गर्व और ऑनर की बात है कि आज मैं जीतो नहार बुकथॉन में जिसका इंटरव्यू, जिससे कन्वर्सेशन चर्चा करने जा रहा हूँ. He is none other than Dr. Vijay Jawaharlal Darda, a name which needs no introduction, but फिर भी for customary reasons मैं छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन दूंगा. लोकमत कौन नहीं जानता है. It is the #1 leading media group in Maharashtra and also has its tentacles in other parts of the country. He himself is a 3-time Rajya Sabha member. लोग एक बार करते हैं, 2 बार बनते हैं, गर्व महसूस करते हैं. He is a 3-time Rajya Sabha member. जाना पाना चेहरा है जर्नलिज्म में. बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, अगिनत आर्टिकल्स लिखे हैं. He has also been a politician apart from being a journalist. And he has championed n number of causes around social justice, humanity, education, health, crisis, infra, women empowerment, and so on. उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं पढ़ने जाऊं तो हमारा जो ये allocated 48 minutes है उसी में खत्म हो जाएगा. But I am sure हम लोग सब आज उनकी किताब के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं. So we'll move up. डॉक्टर विजय दर्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टू जीतो नहार बुकथॉन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और आपकी जो किताब है रिंगसाइड, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे. रिंगसाइड जितना मैंने समझा है, आपने जो वेरियस आर्टिकल्स अपने जीवन भर में लिखे हैं उनको चुन चुन के सिलेक्टेड आर्टिकल्स को आपने एक साथ करके ये किताब छापी है.
और मैं कहूंगा बिफोर आप स्टार्ट करें और मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं, अगर आप थोड़ी सी किताब की झलक हमको दिखा दें ऑडियंस को, तो इट वुड बी नाइस। ये आप देख सकते हैं, इट्स अ प्रिटी थिक बुक, और उनका चेहरा है यंगर, मच यंगर फेस देन जो आज पहले पुरानी लिखी हुई किताब है, विच इज स्टिल वेल रिट। माय गॉड, इससे आप समझ सकते हैं कितने आर्टिकल्स और कितनी बातें इन्होंने इस किताब में लिखी है। हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएंगे करेंगे। विजय जी, पहला सवाल है आपसे, ये रिंग साइड किताब आपने कब लिखी और क्या सोच के लिखी, मतलब क्या आपका प्रेरणा क्या थी? साहब देखिए, सबसे पहले मैं आपको, संजय जैन साहब, आपके जैसे प्रबुद्ध और प्रज्ञावान एक बिजनेस तो शायद आप गलती से कर रहे होगे, मगर इसके पास में सरस्वती का वरदान है। ऐसे महानुभाव के साथ में आज मेरा, मैं आपसे चर्चा करना विजय जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप अभी नाप पे पधारे तब आपके दर्शन का भी योग आया था। आपके माध्यम से मैं सभी हमारे जो प्रबुद्ध देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और अलग अलग लोग जो इसमें जुड़े हुए, चाहे वो जैन हो अजैन हो, उन सबको मैं पहले तो नमस्कार करता हूँ, जय जैनेन्द्र कहता हूँ। और एक आपने एक बहुत अच्छा काम किया, दिन ब दिन पढ़ने की रुचि खत्म होती है, और कुछ ऐसे माध्यम आ गए, उस माध्यम के कारण से लोग इतने उलझ गए हैं। और विशेष रूप से मुझे नई पीढ़ी की जरा ज्यादा चिंता है। एग्जैक्टली मेरे मन में जो बात, उसी को आपने हिट किया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तो जैसी संस्था अगर रायसोनी ग्रुप सोचे तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सुनील रायसोनी ने अपने आप को टोटली एजुकेशन में डेडिकेट किया। वैसे तो वो भी बहुत कमा सकते थे, मगर उन्होंने गुटके जैसा बिजनेस से जला दिया, और वे शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन को बनाने में जुटे। तो ये आप लोग जब मुझे मिले और आपने जब कहा कि भाई आपको का हम लोग एक क्या कह रहे, किताब का हम लोग अब किताब का महोत्सव मना रहे हैं, किताबों के माध्यम से क्रांति कर रहे हैं और लोगों के जीवन को बदलाव लाने का प्रयास है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सादी बात, पत्रकारिता और लेखन ये मुझे विरासत से मिली। उनके पिता प्रसिद्ध स्वतंत्र संग्राम सेनानी, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष नेता, राजनेता बाबू, जिनके सम्मान में हाल ही में यानी 2 जुलाई को उनके 101 जन्म दिवस पर भारत सरकार ने 100 रुपए का सिक्का निकाला। उसी समय में ये किताब के लिखी जो चर्चा हो रही है, ये भी योग आयोग है। और उन्होंने सबसे अगर किसी अहम चीज मानी होगी तो कलम भी मानी, लोगों के स्वतंत्रता को मानी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके ऊपर उनका बहुत जोर रहा है। और फ्रीडम ऑफ हमें कलम की आजादी, हम लोग एवरी डे लोकमत में कलम की आजादी को शिखर देते हैं। तो बाबूजी ने अपनी कलम जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए काम। मैं बहुत छोटा था तब हमारा देश आजाद हो चुका था। मैं कहानियां सुनता था दादी माँ के मुंह से, कहानियां सुनता था, कभी कभी मूड में रहते तो बाबू के भी मुंह से। तुम्हारे उम्र के जमाने में हुआ था 16-17 साल के अंदर, पहले हमें 15 साल की उम्र में प्रेरणा मिली सुभाष चंद्र बोस जी से, आपकी यवतमाल आए थे।
और अब बस हमने आजाद हिंद सेना शुरू कर, घोड़ा लाया, घोड़ा पे उन्होंने हमको यूनिफॉर्म किया, उस यूनिफॉर्म में हम लोग पहनकर वो जो आजाद हिंद सेना का गीत गाते निकलते। फिर हमें सूजन जगाने के लिए किया तो हमने हाथ से लिखना किया, और उसके बाद में फिर हमने नवे जग नाम पे अखबार किया। नवे जग का मतलब नहीं थी, तो अंग्रेजों ने उसको जब्त किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। तो ये जो उसके बाद फिर गांधी जी के संपर्क में आगे, विनोबा भावे के संपर्क में आगे, बाबू भूदान का भी बहुत बड़ा जो काम था। आज जो आपको महाराष्ट्र में जो संघर्ष नजर नहीं आता लैंड को लेकर, जो आपको उत्तर भारत में नजर आता है, कारण है कि विनोबा जी तो वैसे पूरे देश के करीब करीब 60,000 मील लोग। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई और हमको इतिहास में ले गए, और वर्तमान को समझने के लिए इतिहास समझना बहुत जरूरी होता है। आपसे एक, क्योंकि आप पत्रकार है या आपका मुख्य मेन जो आप समझे काम है, तो आपके इस जीवन में पत्रकार और सार्वजनिक जीवन की आपकी संपूर्ण यात्रा में आपने बहुत से राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अपने तथ्य रहने की चुनौतियों को साथ कैसे संतुलन बनाया। इतनी सारी चुनौतियां जो आती है पत्रकार की जिंदगी में, इसको कैसे बैलेंस करके चलते हैं? मैंने आपको कहा कि हमारा जो लक्ष्य, एक बार आपका लक्ष्य अगर तय हो जाए, चुनौती तो आने वाली, अगर चुनौती से डरते अलेक्जेंडर ने और पूर्व ने साम्राज्य क्रिएट नहीं किया, चुनौतियां तो आएंगी, बाधाएं आएंगी। अगर ये सारी बाधा आने के बावजूद भी गांधी जी ने देश को आजादी मिली, जिस आजादी के फल आज हम लोग भोग रहे, वो भोग कर रहे हैं। हमारे पास आज जो कलम की आजादी है, बोलने की आजादी है, तभी तो मिली ना हमारे संविधान। तो बेसिकली ये थी हमारे जीवन में जो था, वो था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उस राष्ट्र में बसने वाला वो आदमी, जिसको हम लोग आज कॉमन आदमी कहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। विकास के माध्यम से जनजीवन बदल सकता है, ये हमारा ध्येय है। और ये अगर एक बार आपके दिमाग में अगर बात आ जाती है, तो कोई खरीद सकता है, बिल्कुल, कोई आपको विचलित कर सकता है आपके लक्ष्य से, और ना ही कोई आपको डरा सकता। बिल्कुल सही बात बोली। और आजकल के युवा अगर ये बात समझ जाए और निडर होके अपना कार्य करते रहे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप वर्ष 2011 से 16 तक के आपके जो लेख हैं, उन पर नजर डालने के बाद में आप ये कैसे सोचते हैं कि भारत का सामाजिक राजनीतिक चित्र बदल गया है? भविष्य के लिए आप क्या अनुमान और आशाएं रखते हैं? देखिए जैन सर, 2011 से जब से मैंने लेखन शुरू किया है, ऐसे तो मैं मतलब स्कूल डेज से लिखता है, मैंने उसमें शब्दांजलि करके हम लोगों ने मैगजीन निकाला था, और उसमें भी सामाजिक चीजों को हम लोग उजागर करने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि उस स्कूल के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन लोगों में क्या, वो भी हमने लिख डाला था उसमें। थोड़ी सी हलचल मच गई थी। तो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमारे सामने मैंने 2011 से मेरे लेखन को आगे बढ़ा, तब देश राजनीति उथल पुथल के दरवाजे पर खड़ा। उस वक्त सबसे अहम मुद्दा था भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा था सामाजिक दायित्व महिलाओं के प्रति,
तो उसी वक्त में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन, बिल्कुल, समय हमारा पार्लियामेंट चल रहा था, और वो जो आंदोलन हुआ उस वक्त में, यानी वो बात है 2011 और 2016 का बीच में, जो लोकपाल बिल और महिलाओं के अत्याचार के मामले में देश में एक विभिन्न वातावरण बना हुआ, और उसी वक्त में धर्म के आधार पर अभिनेताओं से लेकर राजनेता तक को निशाना बनाया। निर्भया बलात्कार हत्याकांड देश के जनमानस में एक क्रोध की भावना निर्माण कर, और अगर उस समय में इन सब विषयों पर अगर हम नहीं लिखते, चुप रहते, बिल्कुल, क्या आज हमारा जमीन हमें माफ कर? बिल्कुल। आप हमको भी सब फ्लैशबैक में ले गए, और ये सब जो घटनाएं बता रहे हैं ये नेशनल क्या इंटरनेशनल इश्यूज बन गई थी। आपने रिंग साइड में को 5 साल की अवधि में जो भी घटित घटनाएं हुई, उसके पर्दे के पीछे में जो था, जो सोच थी, जो प्रतिक्रियाएं थी, वो आपने सामने लाए। तो इन घटनाओं पर आपकी जो धारणा इन 2016 के बाद में बदली है, तो कैसे बदली है? क्या आपको लगता है भारतीय लोकतंत्र और समाज की स्थिति के बारे में रिंग साइड पढ़ के पाठकों को क्या सोच बनेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ये प्रश्न है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के ऊपर है। आपका जो प्रश्न है ये निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? बेसिकली निष्पक्ष पत्रकारिता कब कैसी होनी चाहिए और कैसी आ सकती है, तब आ सकती। देखिए, ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। मैं एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आता हूँ जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और मैं भी उससे जुड़ा था। मेरे पिताजी का तो पूरा आयुष्य उसमें गया। हाँ जी। और इस पार्टी ने देश को आजादी भी दिलाई। मेरे पिताजी के हाथ में उसका झंडा भी था। और ये सब होते हुए हमने अखबार की आजादी को कभी ठेस नहीं पहुंचा। हमारे बाबूजी हमेशा कहते थे कि आपकी जो कलम है ये किसी पक्ष के लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये है हमारे दायित्व के लिए, जो लक्ष्य हमने बनाया है। आपको आश्चर्य होगा संजय जी कि जब वो मेरे पिताजी मिनिस्टर थे और अपोजिशन के ऊपर बेछूट मेरे पिताजी के ऊपर आरोप लगाया, उसको लेके लगातार 2 दिन तक विधानसभा बंद होती रही। अच्छा, इतने गंभीर आरोप थे। उस वक्त में पहला लोकमत का टेस्ट, लोकमत क्या हेडलाइन लगता सारा देख रहा था राज। हमने बाबूजी को फोन किया और बाबूजी ने कहा, बाबूजी आज ये सब हमने क्या हेडलाइन देंगे? बाबूजी ने कहा, विजय अगर मैं नहीं होता उस जगह तो तुम क्या कर, वही तुम्हारी हेडलाइन है, आज आदमी को भूल जाइए। और एक बात और ख्याल में रखिए, अच्छा तो आपने पूछ किया कि तुम इस अखबार के मालिक में, मैं इस अखबार का मालिक हूं, हम लोग ट्रस्ट की भावना से काम करते। एक बार यूं ही इंदिरा जी को कंप्लेंट की, दादा जी आपके और अखबार में कितना आपके खिलाफ में आ रहा है।
उनको बताया, उन्होंने बाबूजी को मिलने बुलाया। अच्छा, बहुत, ये आपने जो ये एक फोन कॉल की बात बताई, आई थिंक सो ये बहुत बड़ी बात सीखने के लिए है कि आदमी ऐसी परिस्थिति में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलता है और लोग को मार्गदर्शन देता है कि जो सही है वो करो। ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसका मूल क्या है देखिए, हाँ, बाबूजी ने जो जवाब दिया वो भी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना। बाबूजी ने बिल्कुल। कहा, मैडम ऐसी छोटी मोटी बातों में आप क्यों ध्यान दो, हम्म। मेरे यहाँ पर अलग अलग विचारों के लोग काम करते हैं, तो फ्रीडम देना ही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना, जिस जिसके संस्कार में भेदभाव नहीं है, घृणा नहीं है, हम्म। किसी जाति धर्म संप्रदाय के प्रति द्वेष नहीं है, वो ये कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये आप, बहुत, सॉरी, हाँ बोलिए। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं यही कह रहा था कि इसी हाँ, बेसिकली जो आपने मुझे पूछा, तो आपकी आप विजय जी, अलग होनी चाहिए। हाँ जी, आप विजय जी, अगला सवाल आपको पूछ जो हम समझना चाहते हैं आपसे, आप विदर्भ के इलाके से हो, नागपुर विदर्भ बड़ा जो क्षेत्र है, इसका बड़ा नाम है जी, और ये एक ढंग से सेंटर पॉइंट भी है भारत का। जी, तो विदर्भ के मसलों को उजागर करने के आपका जो प्रयास हमेशा रहा है, जी। क्या आप बता सकते हैं कि विदर्भ की समस्या आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही है? समझते हैं आपके क्या आप यही के हैं, पर फिर भी यही कारण है या और कुछ है? और पत्रकार और राजनीतिक चिंतकों की भावी पीढ़ी को रिंग साइड के माध्यम से प्रभावित करने का आपका जो योगदान को आप कैसे देखते हैं विदर्भ के संपर्क? आपने इसमें जो विदर्भ की बात की है, विदर्भ की बात ऐसी है, विदर्भ से देखिए, मैं विदर्भ में पैदा हुआ, मेरे पिताजी विदर्भ में पैदा हुए, मेरे दादाजी विदर्भ में पैदा हुए। अब उस समय में विदर्भ सेंट्रल मध्य भारत, या हमारा अगर यवतमाल इलाका जो है निजाम के टेरिटरी में, हैदराबाद के निजाम के, उसका झंडा लगता था हमारा। मगर उसके बाद में मेरे जो बड़े दादाजी थे, सेठ अमोलक चंद जी, उनके बाद में जो कॉटन किंग थे, दूसरे उनके भाई यानी कि मेरे दादाजी अमोलक चंद जी दरडा, उसके बाद मेरे पिताजी जवाहरलाल जी दरडा। बेसिकली हमारी ये जो एरिया है, ये किसानों की एरिया है, लैंडलेस लेबर की जवान एरिया थी। उसके बाद में हमारी जो ये जो एरिया है विदर्भ, ये एरिया जो है, ये स्वतंत्रता के जिसमें बहुत बड़ी योगदान देने वाली एरिया है। तो और यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी देश का जो आंदोलन चला वो यहाँ से चला। विनोबा भावे ने भी विधान युद्ध का ये जो है यहाँ से, तो और ये होने के बाद में जो किसान, यानी एक जमाने में टाटा के, बिरलास के, सारे लोगों की जिन्हीं पे सिंह यौतमाल, बिल्कुल, अंग्रेजों ने वहां से पीछे ग्रेट लाइन डाली, वो एरिया के अंदर किसान आत्महत्या कर। हमारे पास में इतना बड़ा फॉरेस्ट, पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है हमारे पास। हमारे इसमें पानी है, हमारे पास में खनिज संपदा है, हमारे पास में कोल है, मैग्नीज है, क्या नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ पर पावर हम लोग यहाँ जनरेट करते हैं, पूरे राज्य को देते हैं। सीमेंट के सारे प्रोजेक्ट प्लांट्स हमारे यहाँ पर,
यहाँ से हमारे पास में सब कुछ है, मत फिर भी हम लोग भूखे। विकास ये भावना जो लोगों में हो, तो लोगों ने ये कहा कि भाई एक, अच्छा एक भाषा के कई राज्य हो सकते, हिंदी कहने के राज्य है, मराठी, ये लोगों की भावना उस कारण से रही। और इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली जो लिखा है वो लिखा है किसानों के लिए लिखा है। विकास के लिए राष्ट्रों का बहुत बड़ा महत्व है, बिजनेस का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, हमारे यहाँ पर विधानसभा है, हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे देश का सोना हमारे यहाँ रखा जाता है। अच्छा, पूरे देश का, हाँ पूरे देश का सारा गोल्ड यहाँ रखा जाता है। हमारा पूरा इलाका जो है सेंट्रल लोकेटेड है, 0 माइल नागपुर देश का। बिल्कुल बिल्कुल। सारे और डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स है, हाँ, ये सारा डिफेंस जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जितने आप भंडारा डिस्ट्रिक्ट में जाइए, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाइए, नागपुर में आइए, सारे तरफ आपके पास में आपको नजर आएंगे डिफेंस के प्रोजेक्ट। ये सब कुछ बिल्कुल हमारे है। बिल्कुल सही। 0 माइल है नागपुर। मेरे जो तो समस्या ये है कि लोकमत पूरे महाराष्ट्र में, और मैं एक रीजन की बात नहीं करता, मैं तो डेवलपमेंट की हर रीजन की बात करता हूँ। मराठवाड़ा का भी विकास होना चाहिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र का भी विकास होना चाहिए, मध्य महाराष्ट्र का भी विकास होना चाहिए, विकास हर भाग का होना चाहिए। उसी में से ये बात सामने आई था किसानों का। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान यहाँ पर आत्महत्या। ये अगर आप देखोगे तो एजुकेशन में अन्य प्रांत, अन्य भागों से महाराष्ट्र विचार करोगे तो यहाँ कितने स्कूल से, हाई स्कूल से, कितने कॉलेजेस है, कितने किलोमीटर रोड से, कितना, ये सब सारी जो चीजें ये मैं मेरे से उजागर करते रहा। और ये बात मैंने प्रभावी ढंग से पार्लियामेंट में भी रखी। पार्लियामेंट में जब रखी, जब किसानों की बात पूरे देश की रखी। जब मैंने जब जैनिज्म की भी बात वहां रखी, कोई मेरे की जाति भेद नहीं था। मेरा ये कहना है कि एक छोटा समुदाय है और हमारा विश्वास है अहिंसा। तो भाई ये जो ग्रीन डॉट जो हमने किया है, ये आप हमें एश्योर कर दें कि ग्रीन डॉट भगवान महावीर के 25 निर्वाण जयंती के समय में हमने बुलाया। तो ये जो ग्रीन डॉट है, ये सत्य 100% वेजिटेरियन, ये तो उसमें कोई गैर नहीं है, ना कोई जातिवाचक है ये। और आज सबसे बड़ी अगर समस्या कोई उधर होगी, वो है हमारे देश के सामने चुनौती होगी कि हम लोग विकास तो बहुत कर रहे हैं, प्रगति बहुत कर रहे हैं हम लोग, मगर आय, जात, धर्म, इसमें सब बाहर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने रखी है। और पता चलता है कि आप विदर्भ के भी होके पूरे देश के हैं, और इसीलिए आप शायद 3 बार राज्यसभा में भी रिप्रेजेंट किए। तो कि आप ठीक है लोकमत और आप महाराष्ट्र और विदर्भ से संपर्क रखते हैं, लेकिन आपने पूरे भारत को सर्व किया है। और मैं खुद टेक्सटाइल्स का आदमी हूं, तो मैं विदर्भ का रुई और कपास का जो रिश्ता बहुत अच्छे से समझता हूँ। विजय जी, रिंग साइड के प्रकाशन में हमने देखा बहुत ही महानुभाव आपसे जुड़े हुए थे इसमें। श्री शरद पवार, डॉक्टर शशि थरूर, श्री संजय बारू, श्री शेखर गुप्ता, श्री कीर्ति तुलसी तथा राजदीप सरदेसाई जैसे दिग्गज इसके समर्थन से ये किताब बनी आपकी। तो इस पुस्तक को जो प्रतिसाद मिला, इसमें इन हस्तियों के समर्थन का कितना बड़ा योगदान था? तो देखिए, बेसिकली ये किताब तो मैंने कंप्लीटली मेरी है, तो पर उन्होंने भाष्य किया है। उन्होंने ये जितने भी दिग्गज है, जैसे संजय बारू, एक बहुत सुलझे पत्रकार है। ये बात और है कि हो सकता है कि कांग्रेस को उनकी बात नहीं अच्छी लगती है,
जो उन्होंने एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर लिखा था उसे भी बनी। हमारे राजीव सरदेसाई जो है ये भी आज इंटरनेशनल क्वालिटी के पत्रकार है। उनका प्रिंट और टेलीविजन दोनों में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है। शशि थरूर जो है ये एक बुद्धिजीवी विचारवंत, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम हमेशा यूएन के अंदर लहराते रहे। वो तो सेक्रेटरी जनरल की कॉन्टेस्ट भी कर चुके थे, पार्लियामेंट्री है। तो बेसिकली इन सब लोगों ने जो लिखा हुआ है, तो संजय बारू ने मेरे पत्रकारिता के बारे में जो लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि भी आदर्शों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि विजय जी आपकी पत्रकारिता के आदर्श के प्रति मैं प्रतिबद्धता जो है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। आपने अपने लेखन में विषय निष्ठा और निष्पक्षता जैसे बनाए रखे, और खासकर जब संवेदनशीलता राजनीतिक मामलों के प्रश्न आते थे तब आपकी कलम चलती थी। ये उनको उसमें से नजर आया। तो शशि थरूर ने भी उसमें कहा कि भाई जिस समय में राजनीति के बीच में मीडिया होने वाली आलोचना और सहिष्णुता बढ़ती जा रही है, भारत में आप मीडिया और राजनीति के बीच में वर्तमान संबंधों का आलोकन कैसे कर पाए, ये उन्होंने उसके अंदर। मुझे ऐसा बेसिकली ये लगता है इन दिग्गजों ने मेरे बारे में जो लिखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे नजदीक से देखा है, मेरे जीवन को देखा है, हम लोग संपर्क में रहे। पवार साहब ने मुझे जैसे मैंने उनको यंग डेज में देखा, उन्होंने मुझे उससे भी यंग डेज में देखा। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर उनको जो भी देखने मिला, तो उन्होंने मेरी पुस्तक को सराहा, पढ़ा, उन्होंने अपने मेरे विचारों का सम्मान किया। रिंग साइड के बारे में लोगों के बीच में उसकी वजह से उत्सुकता भी बढ़ी, दिलचस्पी भी बढ़ी, और ज्यादा उनके विचार जो सुनने मिले। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये क्या है कि मैं रिंग साइड को उसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि रिंग साइड ये मेरा एक रेफरेंस बुक है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, यंग पॉलिटिशियंस हो, उनको जब विषयों के ऊपर जब उनको देखना होगा, तो क्योंकि मैंने जो लिखा है वो मेरे ख्याल से सारे विषयों को मैंने छुआ है। राजनीति भी आई, पार्लियामेंट्री भी आए, कृषि का भी था, पर्यावरण का था, उद्योग का था, इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर थी, पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिसी बनती थी उसके ऊपर थी। तो मैंने ऐसे अलग अलग विषयों को उसको स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा मैंने। बहुत अच्छा लगा सुनकर। जब आपके साथ और बुद्धिजीव जुड़ते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं और आपके साथ भी चलते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो सफर और जो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज का, वो और स्ट्रांग हो जाता है। आपसे एक सेकेंड लास्ट सवाल समझे, आज के सामाजिक आर्थिक माहौल में इस विषय या मुद्दे को आप सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हैं और क्यों? क्या बोला आपने? मैंने कहा आज के जो सामाजिक आर्थिक माहौल चल रहा है, इस किस विषय या मुद्दे को आप सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हैं और क्यों? देखिए आज का सबसे अगर संवेदनशील कोई बात होगी इसके मैंने जिक्र, तो वो है इस देश की अखंडता। आज हम लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, इतना विकास कर रहे हैं, दुनिया के अंदर अपनी शक्ति बना रहे हैं, एक हम हमारा प्रभाव निर्माण कर रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, और जात को पीछे छोड़ दो।
धर्म को पीछे नहीं छोड़ रहे, अंधविश्वास को पीछे नहीं छोड़ रहे। तो ये जो सांप्रदायिकता जो है, ये कहीं मुझे डर लगता है इसमें दूसरा कोई जन्म नहीं देते। और इसलिए देश की अखंडता, देश की प्रभुत्ता, ये सबसे महत्व का मुझे लगा। और इसलिए हम लोग विज्ञान में भी विश्वास करते हैं, पर्यावरण में भी विश्वास करते हैं, मगर ये सारी जो चीजें हैं, विज्ञान और पर्यावरण, क्योंकि देश को अगर आगे ले जाना है तो विज्ञान जरूरी है। बिल्कुल। आप जीवित रहना है तो पर्यावरण को जिंदा रखना जरूरी। बिल्कुल। तो ये जो दोनों जो चीजें हैं हमारी, तो इसलिए हमें भावी पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए वैज्ञानिक सोच को नई ऊंचाई पे लेके जाना है। और उनको ले जाते समय में पृथ्वी और मनुष्य के जीवन की रक्षा करनी पड़ेगी, उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। और ये अगर करना है आपको, अगर आपको करना है तो अपनी जाति, मजहब आपको। बहुत सुंदर तरीके से आपने, अगर मैं कहूँ, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो बैलेंस रखना, और जो प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट भी है, पर उसका परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ही पूरे विश्व में ये है। ESG के नाम से आप अपने दिन भर सुनते रहते हैं। आपका कंसर्न एक तरफ एनवायरनमेंट पे, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी को रोज नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। विजय जी, मैं आपसे आखिरी सवाल, रिंग साइड और इसके पहले प्रकाशित आपकी जो कृति थी स्ट्रेट थॉट्स के बाद, अब भविष्य में लेखन को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? मतलब आप कौन सी अपनी नई सोच युवा पीढ़ी को मैं आपको दिखाऊं के बारे में सोच रहे हैं? एक इशू बिफोर पार्लियामेंट। अच्छा, ये भी मेरी किताब आई थी। ओके। और इसमें भी सारे टॉप के पार्लियामेंट्री थे, अलग अलग पार्टी के, इन लोगों के हाथ से ही उसका ये हुआ था। ओके। उसके बाद में फिर मैंने मराठी में भी ये थे, इनर संपणारे शब्द, ये भी एक उसमें था। उसके बाद में एक किताब थी मेरी, ये द स्टेट थॉट्स। उसके बाद में हम लोगों ने एक वाइल्ड स्केप करके किताब बनाई थी, पर्यावरण और इसके ऊपर थी। और साथ ही अभी हमने 50 साल मनाए हमारे लोकमत का, कलम की आजादी की। वाह। तो उसका ये किताब हम लोगों ने निकाला था। बहुत बहुत अच्छा। तो अभी मेरी जो एक नई किताब है, उसके ऊपर काम चल रहा है, चांद। तो चंद करके किताब है, वो पार्लियामेंट के ऊपर है, चंद। अच्छा। तो ये जो उसका मैं आपको कवर शेयर कर सकता हूँ, प्लीज। बहुत अच्छा। ये भी कवर मेरे पास हाल ही में आया देखने के लिए। ये कलर है, मगर ये चंद का दी चंद, चंद CHURN चंद। तो ये किताब जो है ये भी आ रही है। और एक किताब है जो मैंने हार्वर्ड में स्टडी किया था, ये सब्जेक्ट था रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट और पीस। रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। तो वो किताब के ऊपर चल रहा है, करीब 2 साल से काम कर रहे हैं। तो वो भी किताब अब जल्दी आएगी, ऐसा विश्वास है। उसके बाद में अगर मैं समय ढूंढ रहा हूँ तो मेरे गजल है, मेरी नज़्में है, मेरी कविताएं हैं, उसकी भी किताब मुझे बनानी है। वाह। मैं आपसे सबके मतलब आपके सामने, मैं भी युवा हूं, ये आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं विजय जी?
मतलब हम तो सोचते हैं एक आदमी एक किताब की बात करेगा भविष्य की, आपने तो अलग अलग क्षेत्र की लाइन लगा रखी है, तो इतना एनर्जी कहाँ से आता है? बेसिकली क्या हो गया है कि जब आप कोई सीरियस काम करते हैं, थोड़ा कोई लाइट काम भी होना चाहिए। इसलिए मैं पेंटिंग करता था, बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने जहांगीर आर्ट गैलरी के अंदर, उनकी बड़ी कृपा है कि वो जहांगीर आर्ट गैलरी जैसी गैलरी उन्होंने दी हमको, उसके ऊपर हमने पेंटिंग बनाई है। और वो कोविड का फायदा उठाया मैंने, और वो पेंटिंग उसके अंदर आई हमने। तो ये बेसिकली ये जो लिखने पढ़ने वाले जो लोग रहते हैं ना, जो आप भी हो, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, इमोशनल हूँ। तो इसलिए जो बात अच्छी लगती है बोलता हूँ, जो बात अच्छी नहीं लगती वो तो स्वीकार नहीं करता। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं जिनको जिंदगी से बहुत से अनुभव मिलते हैं, वह बहुत कम है कि वो उस अनुभव को कागज में उतार सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां, अपने आसपास के लोग उनका पूरा पूरा उपयोग कर उठा सके, फायदा कर सके। तो ये हमारे साथ विजय जी दर्डा जी हैं, जिनकी जैसे मैंने कहा जितने भी चर्चा करें, जितनी भी इनकी का परिचय दे कम है। He is a man, as I would say, a man who is a 360 degree person. And 360 डिग्री माने कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए, मैं मेरे हर कैमरे फील्ड को में भी निपुण 360 है। डिग्री घुमा रहा हूँ उसके अंदर। मैं देखिए इतना कम नजर आ रहा हूँ आपको, अब धीरे 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 मुझे जो है आपके कारण से मैं ऐसा उजागर हूँगा। देखिए, जो यही मैं ख्याल से ये पत्रकारों की खास बात है कि वो कैसे छोटी सी बात को पूरा उसका एक अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। थैंक यू विजय जी हमारे साथ रहने के लिए, और हजारों लाखों लोग आपको सुनेंगे आने वाले दिन में जी, तो ये बुकाथॉन के थ्रू। एंड उम्मीद है वो आपसे सीखेंगे तो जरूर, लेकिन आपसे उससे भी इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रेरित होंगे कि जिस ढंग से आपने अपने जीवन को ढाला है, जिस ढंग से आपने एक एक विषय को उठाया है और पूरी पैशन के साथ लिया है, चाहे वो आर्ट हो, पोएट्री हो, पॉलिटिक्स हो, जर्नलिज्म हो, सोशलिस्ट इश्यूज हो, आपने हर इश्यू को मैंने देखा आपने टच किया है, और आपके आर्टिकल्स ने पूरे 360 डिग्री हमें विवरण दिया है। और दो ये कहने को 2011 और 16 के बीच में लिखे हुए लेख है, लेकिन अगर हम इसमें, अगर हमारे जो सुनने वाले अगर इस किताब को उठा के पढ़ेंगे तो नहीं इसकी नहीं, जो सोच। ये सारे लेख 2011 और 16 के बीच में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। ये जो है ये पहले की भी है। ओके, ठीक है। मतलब इस किताब में मेरे ख्याल से करीब करीब 10 साल के इसमें होंगे, इसके पहले किताब में और 10 साल के होंगे। अच्छा, तो ठीक पहले के भी उसमें 10 साल के होंगे, और आगे की भी जो है वो भी जो आर्टिकल, क्योंकि मैं हर मंडे को लिखता हूँ। अच्छा। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, आपको जो भाषा में मैं जानता हूँ आप अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। सही है। मगर मैंने कसम खाई थी कि मैं जितना होगा तो जब पार्लियामेंट में गया था तो मैं जितना होगा उतना प्रयोग हिंदी में करूँ। ठीक, नहीं, अच्छी बात है, अच्छी तो बात। इसलिए कॉमन मैन की लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अगर बीच बीच में, महीने में भी एक बार, 2 महीने में भी एक बार अगर लिखे, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम लोग मराठी, हिंदी, इंग्लिश है, तीनों भाषा में उसको जगह देंगे। ये मेरे लिए, मैंने अभी एक किताब लिखी है विजय जी, उसका शीर्षक है, और इस बुकाथॉन में वो किताब की भी चर्चा है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन द रेसिपी कॉल्ड लाइफ, यानी चुटकी भर नमक। और मैंने अपनी जिंदगी की 18 सोच, जो मेरे हिसाब से एक चुटकी भर नमक के बराबर है, मैंने भी एक किताब लिखी है। आपकी जितनी तो नहीं लिखी है, पर एक जरूर लिखी नहीं, है। आप हमें देखिए, आपको याद है एक बार ऐसा कहा था किसी ने कि बहुत तपस्या किया रहे एक जैन साधु, बहुत तपस्या, जिंदगी भर तपस्या करते रहे, बाल अवस्था से उन्होंने दीक्षा ले ली थी।
पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसके मन में एक भाव आया और वो स्वर्ग को पहुंच गया। सही बात है, सही बात। तो ये किसने लिखा, उन्हें क्या लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट। उसकी वजह से क्या औरों को मिलने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि संजय जी वो किताब भी हमें भेजिए आप जरूर। और आपको मैंने जाहिर दावत दी है कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ और शेयर भी करूंगा। 1 महीने में एक बार लिखिए, 2 महीने में एक बार लिखिए, 3 महीने में एक बार लिखिए, जब आपका मूड है तब लिखिए। नहीं, मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं ये सेशन एंड करने के पहले लास्ट लेसन जो हमने सीखा, कई चीजें किताबों में नहीं लिखी होती है पर चर्चा में आती है, इसलिए हमने बुकाथॉन रखा। क्योंकि एक किताब को पढ़ना 4 घंटे 5 घंटे लगाना और 48 मिनट में उसका जो मेन मूल भाव निकालना एक अलग बात होती है। और आखिरी बात, अगर आपने नोटिस की, विजय जी जो एक वेल एस्टैब्लिश पर्सन इन मल्टीफैसेट रोल्स हैं, उन्होंने भी दूसरे इंसान को इज्जत देना सीखा है। He respects every individual and feels कि उन्होंने जो भी किया है, बट ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर रहे। और मैं सब जो भी ये सुन रहे हैं उनको कहूंगा, ये लेसन जरूर मन में रखेगा। Everyone is important, everyone should be respected, as big as you may become, लेकिन दूसरा छोटा नहीं होता है। और मेरे ख्याल से इतना सुंदर बात, इतनी सुंदर लेसन हम सबको लास्ट में देते हुए, आई थिंक सो वी विल ऑलवेज चेरिश दिस। और मैं डेफिनेटली अपने आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच विजय जी वंस अगेन फॉर बीइंग इन जीतो बुकाथॉन। वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू अक्रॉस सोशल मीडिया, अक्रॉस वर्चुअल। जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी के माध्यम तक हम आपकी बात न सिर्फ भारत में बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचाएंगे। एंड आई एम श्योर एवरीवन विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस एन अपॉर्चुनिटी। It is our privilege and honor. And taking me to other leap of the different kind of audience. I'm really thankful to you for this. Thank you so much. Keep it up. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Have a good evening. Okay. Thank you. Jai Jinendra.